I'd like to congratulate all the meritorious students here. We have got very high expectations from you all. I would like to hear a very big round of applause for each one of you. Please clap. We all are here today because of you, and we want you all to become a very good listener for today. So what all is happening, we wanted to see how can you develop very good listening skills. So to test your listening skills, in between, we'll be asking you some questions, and the one who will be answering it well will be getting awards. So be very quiet and listen to the questions, and the questions will be asked from within the dais, from the surroundings, and few, journal questions which are very easy. But it requires your attentive listening skills. So I'd like to see how are our meritorious students, how are the listening and speaking skills of our meritorious students. And those who know the answers had just to raise your hand up. Mohsina madam will be there around you within the near you to see who has raised the hand first, and that person will be given an opportunity to answer. Now to begin with, we would like to start with a Khirat-e-Kalam-e-Pak program, and this would be recited by the students of New Model High School, Muhammad Abdul Mannan Siddiqui, Muhammad Fardeen, Muhammad Irfan, and Master Vinith. So the recitation of the Quran will be translated in different languages. So I'd request these students to come on the dais and start with the Khirat-e-Kalam-e-Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العلی العظیم. الرحمن الرحیم. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया। चांद और सूरज मुकर्रर हिसाब से, सितारे और दख्त दोनों सजदा करते हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी ताकि तुम तौल में हद से ज्यादा ना बढ़ो। इंसाफ के साथ तौल को ठीक रखो। शुक्रिया। Of Allah, the most gracious and the most merciful. The most gracious Allah, He created man, He taught eloquent speech. The sun and the moon run o'er their fixed courses actually calculated for his phonic earnings, and helps themselves to Allah, and He has released heaven to set up due to balance.
అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడైన అల్లా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. పరమ కృపాశీలుడు ఆయన దేవుడు ఈ ఖురాన్ని బోధించాడు, మానవుడిని సృష్టించాడు, అతనికి మాట్లాడటం నేర్పాడు. సూర్యుడు చంద్రుడు ఒక నిమ్మ వాళ్ళకి కట్టుబడి ఉన్నారు. నక్షత్రాలు వృక్షాలు అన్నీ సాష్టాంగ అపరుతో ఉన్నాయి. ఆయనే ఆకాశాన్ని పైకి లేపాడు, త్రాసును నేలగొల్పాడు. ధన్యవాదము. Big round of applause. Dear students, all meritorious students, one message, please carry on throughout your life. Learn to appreciate each other. Whenever you see such type of performances, please clap. I'd request Jhansi madam to come on the dais, please. The students here, and we feel that you all meritorious students are one day going to be the leaders. You would be leading the nation, showing the right path to the nation. So to become a leader, what should be the qualities? So there is an organization called India School Leadership Initiative Organization. It is of the only one kind throughout the country in India, and the principals of the various schools in Hyderabad have been trained under this organization. I would request Rohit and Poonam madam from ISLI to talk about what leadership program is and how can our young dynamic students become leaders of tomorrow. May I request Rohit and Poonam madam to come on the dais, please. A big round of applause for Rohit sir, and please take down his messages. Maybe you are getting questions from this message. Congratulations to all the students who have scored such good marks. I hope you keep scoring these good marks wherever you go. For the students first, I train school principals. I am Rohit. My designation as of now is Senior Manager for Alumni Schools. I work with ISLI, India School Leadership Institute. For everyone else, India School Leadership Institute was formed in 2013. 2013 में शुरुआत हुए थे 6 प्रिंसिपल्स के साथ. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है. 6 प्रिंसिपल्स के साथ we started. Now we are working with at more than 425 principals. We are working in 5 cities. We are working with more than 2.5 lakh children. Out of the students who are here, 5 schools are from ISLI. Ma'am was also part of ISLI. Jhansi ma'am, where is she? I don't know. She was also part of ISLI. Nadeem sir was also part of ISLI. So we have a lot of principals who are doing good for their children. Regarding ISLI now, for the principals, we train, we give you consecutive workshops for 2 years. We make sure that in these workshops you are getting good knowledge and you can implement it in the schools. What happens is we have 2 parts of the program. One is workshop and the other is when CPM comes to your school and trains and helps you to implement those things. After 1 year of ISLI, we have all seen the impact, like with all the principals that we have spoken. From 23% of teachers, 23% teachers पहले अपने क्लास के लिए प्रिपेयर करते थे, वो 1 साल के बाद बढ़ के 60% हो चुका है. So if you want to see, all the principals, if you want to see more and more students in this arena, you want to see more students getting good marks, I would say Poorna is there. Please take up a form, fill it up. It's a 2 years of commitment. ये भी पूछा जा सकता है, 2 साल का commitment है, ठीक है ना. ये मैम पूछेंगे तो बताना है, ठीक है. It's a 2 years of commitment, and if you would like to see how your students can improve in spoken English, how your students can improve their reading, how your students can improve in mathematics, please make sure that you reach out to Poorna and take the form. If you have a problem wherein you think parents हमारी बात नहीं सुनते हैं, please reach out to Poorna and take up a form. If you think teachers are not preparing well and they need to prepare well, go to Poorna, take up a form. We will help you do that. That is what we do at ISLI. Thank you so much for your time. Thank you, ma'am. Long pending, as you all know, that teachers, ustad, guru, whatever you call, are the people who build the nations, who are making our lives. So we'd like to give a small token of gratitude to all our ISLI leaders
who had helped us becoming the leaders. So, and Rohit sir is supposed to pass it on to all the knowledge how to run the school and all. So here students are there. I would like to message only one thing which we learnt in ISLI. So avoid plot, P-L-O-T. Anybody knows? Right now for you also prize will be there if you tell what exactly mean by plot. Students, anybody knows? If anyone knows, raise the hand. You will have special prize for that. Students should avoid plot, P-L-O-T. Anybody? Here, boys? Okay. Do you want me to tell or you know? Loudly, energetic in the small age, you should be like a deer, you know. Energetic levels should be. You should be active and agile. So, let me tell you, P for procrastination. Procrastination means postponing the things. If you postpone the things, success doesn't come. So L for laziness. If you avoid laziness, definitely success will chase us. We need not to go back of the success. That success chases when we avoid and eradicate this laziness. O for oversleep. We love to sleep for long time. Parents all the time make the children to get up. But you, mama, 10 minutes, 15 minutes, you keep on, prolong your sleeping period. So if you avoid that oversleep, definitely you will have overwhelming, successful career in the life. Last, T, anybody can say? T? Oh, T you should avoid, time we should avoid. No, I said, which you must avoid, that you have to say. T for television. So that idiot box we have got a cartoon and what all the nonsense we see and we are forgetting the precious time and spending in that. Now can anyone say plot, P-L-O-T? Anybody tell? What did I say? Very good. Tell. P for procrastination. Wonderful. Wonderful. P for Okay, procrastination, L for laziness, O for oversleep, and T for television. T for television. Wonderful. Give her a great applause. Wonderful child. Winner of the contest, you will be getting award later. Okay? Right. Wonderful. So special gift from my side also I will be giving. What's your name, beta? Loudly. Sana Begum. Wonderful. Wonderful. Sana Begum. Yeah, we'll give later. Okay, that's sit. Wonderful. We have noted down. So this is what, if you avoid this plot and learn what is 4 Ds. Dedication, devotion, discipline and determination. If you have, wonderful success you will have. Thank you very much for giving this opportunity. My lovely friend Nasreen, only because of her I have taken all this. Thank you so much. Let me introduce you all to Miss Mohsina Madam. She is the principal, Excel-Edged High School. So a big round of applause for Sana Begum, Janab Khalilur Rahman Sahab, institutions to come on the dais and hand over the awards to ISLI. Din Mujahid Sahab with us, just we are going to be on the dais. Journal Secretary Komi to come on the dais. We are waiting for a few more of our dignitaries to come. Janab Mumtaz Ahmad Khan Sahab, Janab Muhammad Mauzam Khan Sahab, and Yusuf Zahid Sahab, and Akbar Hussain Sahab, and our DCP South Zone Traffic Sri Babu Rao Garu, and Deputy Education Officer Bahadurpura Mandal Sri I Nehru Babu Garu. And with the permission of Khalilur Rahman Sahab, can I conduct the quiz now? After, okay. I Professor Dr. Islamuddin Mujahid Sahab to give us a brief message to the students. Janab Idris, General Secretary Komi Ahmad Idris Sharif Sahab would give a brief description
of Professor Islamuddin Mujahid Sahab. Me. Just please come on the dais. Please welcome, sir. Just I request Janab Makhdoom Sahab, please come on the dais. As well as our Joint Secretary, Janab Shakil, Nadimullah Shakil Sahab, please come on the dais, sir. Thank you. काबिल एहतराम आली जनाब खलीलुर रहमान साहब, प्रेसिडेंट माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हमारे शहर के मुख्तलिफ मदारिस के करस्पॉन्डेंट्स, सेक्रेटरीज, चेयरमैन्स, टीचर्स, कामयाबी हासिल की है उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इंसान दुनिया में अकेला आया है और अकेला दुनिया से जाता है, ये बात बहुत मशहूर है। लेकिन जब तक दुनिया में रहता है उसे कई सहारों की ज़रूरत पड़ती है, और वो सहारे जब तक के मजबूत सहारे साबित न हो कोई आदमी तरक्की नहीं कर सकता है। जैसा कि एक बहुत बड़ा कौल है, एक प्रोवर्ब है कि कोई भी बड़े आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। माने ये है कि जिस शख्स की वाइफ या अहलिया जब तक के घर में पुरसुकून माहौल न रखे उस वक्त तक के वो आदमी कोई बड़े काम नहीं कर सकता है। इसी लिहाज से आप जो कामयाबी हासिल किए हैं इसमें आपके स्कूल्स के ख़ास तौर पर टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। टीचर जो होता है वो नेशन बिल्डर होता है। लीडर्स नेशनल बिल्डर नहीं होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के या कोई और लीडर्स आपके जो है सो नेशन नहीं बनाते हैं। नेशन की बिल्डिंग जो होती है वो आपके टीचर्स होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आपको इनकरेजमेंट करने के लिए इस किस्म की ये तकारीब रखी जा रही है। एक स्कूल की जानिब से नहीं बल्कि पूरे शहर की जानिब से यहाँ पर ये फंक्शन रखा गया है, जिसके लिए मैं इस कॉन्फेडरेशन के तमाम ऑफिस बेरर्स को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आपकी ये सरगर्मियाँ हमारे शहर के अंदर तालीम के लिए और ज़्यादा लोगों में रग़बत पैदा करेगी। हम देख रहे हैं कि हमारा शहर अब एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। कल का अखबार आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा नहीं मालूम है कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज है उन सर्विसेज में जो टॉप करने वाला बच्चा है वो तेलंगाना के बहुत ही रिमोट विलेज से ताल्लुक़ रखता है और उसने 3 लाख कैंडिडेट में सबसे पहला मुकाम हासिल किया है। और आपने देखा होगा कल फ़ोटो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको अपने घर पर लंच पर मदऊ किया है उनके पेरेंट्स के साथ। तो अब एजुकेशन बहुत आसान हो गया है। एक ज़माना था हम सुनते थे स्टूडेंट लाइफ में कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बन सकता है, आईपीएस का बेटा ही आईपीएस बन सकता है, लेकिन आज एक किसान का बेटा भी आईएएस बन रहा है, एक टीचर का बेटा भी आईएएस बन रहा है, घर में काम करने वाली जो औरतें हैं उनके लड़के भी आईएएस बन रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में महाराष्ट्र में था, वहाँ 2 तलबा जो बहुत ही मामूली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं मुसलमान, वो दोनों के दोनों आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं। अभी हैदराबाद के अंदर एक लड़की है जिसका नाम नाहिद है, उसने 62 रैंक हासिल किया ऑल इंडिया सर्विसेज में। और उसका सबसे बड़ा यानी अफसोसनाक पहलू ये है कि ये लड़की 9th क्लास में थी, उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वालिदा के इंतकाल के बाद उस बच्ची पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई थी, लेकिन उसने अज़्म कर लिया था कि मैं अपनी माँ की आरज़ू को मुकम्मिल करूँगी और मेरी माँ ये चाहती थी कि मैं आला तालीम हासिल करूँ। चुनाचे उसके बाद से उसने कंटिन्यू स्टडी की और आपने पढ़ा होगा अखबारात में कि उसने 62 रैंक हासिल किया ऑल इंडिया लेवल पर, और वो फर्स्ट वुमेन में वो फर्स्ट लड़की है जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, कोई दूर नहीं रहती है, मेहदीपट्टनम में रहती है। तो ये आप लोगों को बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी आपके सामने बहुत बड़ा फील्ड है, आपका जो एंड है वो आसमान है और उससे कम नहीं है कि आसमान जितनी बुलंदी पर है उतनी बुलंदी पर आपको जाना है। ये कामयाबी आपने हासिल की, इसके बाद इंटरमीडिएट होगा, उसके बाद आप किसी भी फील्ड में जाएंगे,
चाहे आप मेडिकल जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, कॉमर्स में जाइए, आप कोई सर्विस में जाइए और उसमें अपना आप नाम पैदा कीजिए। खुशी की बात यह है कि आपका ताल्लुक़ शहर से है और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन गाँवों की कि जहाँ पर कोई कॉरपोरेट स्कूल नहीं है, जहाँ पर कोई अच्छा इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है। वहाँ के बच्चे जब सिविल सर्विस में आ सकते हैं तो फिर क्या हमारे बच्चे क्यों नहीं आ सकते हैं? आप में भी टैलेंट है, आप में भी सलाहियत है, उस टैलेंट को, उस सलाहियत को सही रुख पर आप इस्तेमाल करिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत देकर पैदा की है, ये बात याद रख लीजिए। अल्लाह ताला ने किसी को ऐसा नहीं पैदा किया कि उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। हर एक के अंदर सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है और उसको इख्तियार दिया कि वो उस सलाहियत को अच्छे में इस्तेमाल करे या बुरे में इस्तेमाल करे। अगर आप बुरे में इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी चीज़ है कि आप जो है ना किसी मैदान में आगे नहीं जा सकेंगे, और अगर उसको अच्छे में इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी चीज़ है कि आप कौम का भी एसेट बनेंगे, आप हमारे मुल्क का भी एसेट बनेंगे और हम भी फ़ख्र से कह सकेंगे कि हमारे कौम के बच्चे इतने अच्छे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसएससी में कामयाबी हासिल करना बहुत यानी मुश्किल है, क्यों कि कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत से बच्चों को सोशल स्टडी से दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन बहरहाल आपको पढ़ना है। बाज़ बच्चों को लैंग्वेज से दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन उसको आपको पढ़ना है। बाज़ मैथमेटिक्स करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसमें कामयाब होते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं और आपने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें आपको यहाँ पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो इस कामयाबी पर आप रुकिए मत, बल्कि अब इसको आगे ले जाइए। अगर आपने एसएससी में 80% हासिल किया है तो इंटरमीडिएट में आज ये अज़्म करके कुर्सी से उठिए कि 95% से हम कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि एक कदम जब आगे गया तो फिर पीछे पलटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बहुत से बच्चे और बहुत से पेरेंट्स बाज़ मरतबा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। आंध्रा में अभी जो रिजल्ट आया है एमसेट का, बहुत से बच्चों ने एमसेट में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अफसोस कि वो इंटरमीडिएट में फेल हो गए। तो लाजमी चीज़ है कि जब इंटरमीडिएट में फेल हो गए हैं तो वो इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में दाखिला नहीं ले सकते हैं। तो ये दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो लाजमी चीज़ है आपके लिए बहुत कुछ है। आज का जो दौर है उसको हमारे एजुकेशनिस्ट ने क्या कहा, इट इज़ नॉट द एज ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सपेंशन बट इट इज़ द एज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। एक्सप्लोर हो रहा नॉलेज, एक्सप्लोरेशन आप देखते धमाका जो होता है एकदम खतरनाक अंदाज में उसकी आवाज़ आती है, कोई धमाका होता है। तो नॉलेज आज एक्सप्लोर हो रहा है। कहाँ कहाँ से नॉलेज आप ले सकते हैं। घर में बैठकर आप उंगलियां दबाकर इंटरनेट से बहुत कुछ मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। हमारे दौर में हम जब स्टूडेंट्स थे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा मैं आपको 25 साल पहले की, कि उस वक्त ना कोई इंटरनेट था, ना कोई जो है ना आपकी दूसरी कोई सहूलतें थी। लाजमी चीज़ है कि पूरे का पूरा डिपेंड होना पड़ता था लेक्चरर्स पर, और फिर लेक्चरर्स के साथ उनकी अपनी जो मालूमात होती उसी मालूमात को लेकर एक बच्चा एग्ज़ाम लिख सकता था। लेकिन आज हमको खुशी है इस बात की कि बाज़ स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स की नॉलेज लेक्चरर से आगे है। क्यों? इसलिए कि वो लेक्चरर से ज़्यादा पढ़ रहे हैं आजकल। आज लेक्चरर्स को रिफ्रेशर कोर्स रखा गया, कंपलसरी कर दिया गया कि अगर आप इतने रिफ्रेशर कोर्स नहीं करेंगे तो आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, आपको आगे तरक्की नहीं दी जाएगी। पहले लेक्चरर बनने के लिए एमए काफ़ी था, लेकिन अब लेक्चरर बनने के लिए नेट एग्ज़ाम हो गया है, वो देना आपके लिए लाजमी हो गया है। पीएचडी करना लाजमी हो गया है। ये सब क्यों? इसलिए कि आज बच्चे बहुत नॉलेज लेकर आ रहे हैं और उनको नॉलेज आप पहुंचाना है तो एक टीचर को या लेक्चरर को उससे बहुत आगे जाना पड़ता है। तो इस लिहाज से आज का दौर एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का दौर है। आप जितनी नॉलेज लेना चाहते हैं आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उस नॉलेज को आप हासिल कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के जिस एज में हम जी रहे हैं, यहाँ पर हर चीज़ की कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूरी है। एवरीथिंग ऑफ समथिंग ऑफ एवरीथिंग। आप सुने हैं कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना कब बना है। कर रहे हैं तो अकाउंट्स को देख रहे हैं, लेकिन आज आपको हर किस्म की नॉलेज की ज़रूरत है। आईएएस
अभी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे पास, उनसे इंटरेक्शन हुआ बाज़ाब्ता, अखबार में आया, आपने देखना भी होगा, माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेसिक सवालात हमसे किए गए, क्या आप जिस स्टेट से आना है, तेलंगाना के अंदर आपकी कम्युनिटी का एजुकेशनल लेवल क्या है, मुस्लिम बच्चों से जो सवाल किया गया। तो ये नॉलेज को आप गेन कीजिए। किताबें आप पढ़े हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, पास हो गए हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया है और बहुत ही कीमती सर्टिफिकेट आया है। अब इस कीमती सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अमेरिका भी जा सकते हैं, आप सऊदी अरब भी जा सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट बनाने के लिए भी एसएससी सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। बगैर एसएससी सर्टिफिकेट के आप पासपोर्ट नहीं बना सकते हैं। तो अब आपके लिए दुनिया खुल गई है। President Ms. Nasreen Fatima to take the chair on the dais. Now may I request Ms. Mohsina Mubin, our Joint Secretary, to take the chair on the dais. Loyan Deva Jhansi, the correspondent of St. Maria High School. Please. Our guests still to arrive. So students, again the time for you for the quiz program. As told earlier, Mohsina madam and Nadira madam, Jhansi madam will felicitate the students in awarding the best answers. Question. This is a question related to science. We would like to see who could give a good answer in this. Which sea creature has 3 hearts? Sayyida Khunza Noor. Yes? Khunza Noor. School name also. School name. I was in college. I was in inter. Inter, okay, no problem. Okay, what's your answer? Octopus. Octopus. Right answer. And we'd request schools was said to have launched 1,000 ships. Go back to your old pre-primary days. In the traditional rhyme, how many mice were blind? Good. My Right name answer. is Sana Begum and I'm from New Holy Fatima High School. My Big round of applause. Good. Please learn to. How many bones does an adult human have? I'm Sumaya Umar and from Crescent High School. 206 bones are there in adult human. Correct answer. Please give a big round of applause for Zoya. Okay, one more question. Boils at 212 degrees on which temperature scale? You have to give us the temperature scale. I'm Ayub from New Rosary High School. Celsius. Celsius is the wrong answer. Fahrenheit is the correct answer. Yeah, introduce yourself. Sumaya Shafaq from Ahad High School. Yes, clapper. Very good. At the back side. My name is Sayyida Khatija Banu. I'm from Mars High School. And Mary. Mary, yeah, right. And the doll which was famous for crying doll. Do you have a pie? Pie. Can anybody tell me what is the Italian word for pie? Mr. Babu Rao Sahab. To give his message to the meritorious students. I'm sorry, our journal said giving some encouraging words and boosting our students. The galaxy of intellectual, invited guests, teachers, and my dear friends. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I heartily welcome you all on behalf of Confederation of Minority Institutions for the prestigious occasion of our SSC Meritorious Award celebration event. It is very difficult to believe that what was the once dream in being fulfilled now. The idea of putting the foundation of Komi is so inspiring. What was once planted as a sapling is now all grown into a large tree. Here I can see a blend, extraordinary smart students and their parents who have made this day arrive. They have come to us from each and every corner of the city schools. Now this year,
I find to be my pleasure to address you, the people who are the young-minded of today's and the responsible citizen of tomorrow. I and whole our dedicated team members appreciate the efforts of their parents along with their words. So I feel the privilege extend my warm welcome to all dear parents who are constantly extending their support and love to the people as well as faculty members of this organization and different school members. Education is about for more than what happened within the four walls of the classroom, and it is very fortunate to have such a student, trainers and instructor who recognizes this. If this building and the student are the two resources available to the school, then certainly we are the teachers are the third. Really, one of the joy of teaching is draw the creative, academic, sporting potential out their students. I, on the behalf of everyone present here, heartily welcome the inaugurator and the dignitaries of the prizeless function today. The guest of the honor, Mr. Muhammad Mauzam Khan sir, MLA of the Bahadurpura, Janab Yusuf Sahab, and Janab Sayyid Akbar Hussain Sahab, and Sri Baburao Garu sir, DCP of South and East Zone Traffic. Welcome, sir. It is always an honor to be able to motivate young minds. Today's children are the future of the state, of our state and the country. Brilliant faces that I am witnessing today, receiving the award and exhibiting their talent, will grow up to the citizen of our beloved nation tomorrow. They may grow to achieve the great success, name and fame, and earn the decent living to themselves. But the same we wish them to be a good human being too and make this world and hereafter a better place to live in. I would like to pride in saying that the talent they have displayed here today is the proof that they have the potential to become worthy citizens of the society and help themselves and others in the various ways. Lastly and importantly, I would like to welcome all the teachers, staff and students who are the integral part of this event and have always supported the vision and the mission of the Federation. I request all for you, kind cooperation throughout the program and making a grand success. Thank you very much. Thank you, Idris Sharif Saab. May I now request our President Qomi, Janab Khalilur Rahman Saab, to give away his message. Honorable Chief Guest of the today's function, respected Sri Baburao Garu Sahab, DCP South and East Zone Traffic, respected Anwar Sir, President CAT Academy, members of the Confederation of the Minority Institution, members from the other federation, the correspondents of the various schools present here to make this morning a glorious one, all young and the dear awardees, dear members of the teaching fraternity, the proud parents of these young achievers, media and our well-wishers too. Good morning everyone. On the onset, I would like to thank the Confederation for selecting me as the President of the Confederation of the Minority Institution. I appreciate the faith that you have put in me. I understand the responsibility that I have to. I welcome the challenges and want to thank all the members of the Confederation of the Minority Institution. And it is gratifying to look around and see so many familiar faces. And I could see a unique and the talented mix of the students and the parents who made this happen, the glorious result of the SSC student for the academic year 2017-18. This morning, filled with the desire, hopes, dreams all of us share. As we all know, today we gathered here to award our talented, young and the future citizen of our nation
who excel out in the 10th class examination with distinctive results. The hard efforts of the students, the dedication of the teachers, and of course, the cooperation of the parents make this happen. The excellent result in the various schools, I would like to give the special praise and the congratulations to all the teachers who are present here today for putting your good efforts behind these SSC students to bring out the best from them. Your effort have contributed in encouraging the student and in the building the future. Let us give them a remarkable applause. I request all the students to clap for the your teachers. I request all of you to give a big hand for your teachers. Here I congratulate the parent also on the success of their children. I congratulate all the students for achieving good results and wish them a bright future. Here we need to agree on the point that the children who adopt the disciplinary behavior are achieving better results. Discipline is the very basic of the human progress. Discipline is necessary in all the sphere of the life. In fact, life is best enjoyed only if discipline is maintained. Nothing can be properly enjoyed if indiscipline is allowed in the way of it. We should all try to maintain discipline in our lives. Today, I see a large number of parents to whom I want to address. We as the educationists and all the schools belonging to this confederation trying our level best to give the best morals to your children. We teach them to respect the parents, their elders and the teachers also. We want them to shine their name in the society. Either she is a girl or he is a boy. We want them to be honest person. We are covering all aspects of the life. And now I request all the parents, please you also try your part of the duty. Don't allow your children to use internet for much time. Keep an eye on them, what they are watching on internet. Don't allow your children to wander outside unnecessarily. And see that they should sleep early and they get up early. Check your boys not to stay outside the house late at night. Teach them to maintain neatness and teach them to offer prayer regularly. If we and you together to give the good lesson to your children, inshallah, your children will definitely be good citizens of the country. Nowadays, scopes are very high in the sports. Encourage your children to join any sports instead of the wasting time in watching stupid programs on the TV or in surfing on internet. I don't mean to say not to work on internet. Knowing internet is equally important as nowadays almost every part of the work are online. Even from this year, NEET student appeared online exam. So learn something better. Dear children, keep a goal, make it a target, dream of it and put all your harder efforts to achieve it. Those who take trouble to get something, they will not get any trouble in future. Learn to speak English fluently. I am sure the students, those who are sitting here are good in speaking English. And be confident and whatever you do. Now permit me to share you with some of our plan for the ensuing academic year for the Confederation of the Minority Institution. Let me start with the beginning with the month of the academic year, that is June. We will continue the holy month of Ramzan, so we have a plan to host an iftar party. And secondly, the distribution of the notebooks to the deserving student so that it could help them to start the fresh year. During the month of July and August, we are planning to organize inter-school competition for the handwriting and the drawing. And a teachers training section will also be for the teachers to enhance their skill and the ability.
In the month of September, let us celebrate the Teachers' Day, and this time we will honor the children from the primary section. The month of October and November, we are fixing for the science fair. And of course, with the coordination of the Nasreen Madam, who works passionately for this project, and the medical camp also be conducted. Even we are planning to make arrangement with the CAT Academy to send our student from the member school to the NASA, America, inshallah. During the month of December, career guidance program will be held for the SSC. Just clap for the America, the student. We are trying to send it to America. Anwar Sahib is sitting here. We are trying our level best to send one of our student. 10 students are going this time for the America, inshallah. And in the January, let us plan to set the pre-final exam for the SSC students. And lastly, I would like to announce here that we are establishing a school development committee under the chairmanship of Janab Nadimullah Shakil Sahab to promote and the year plan for the school and the academic side. The members who will be working under the project are Janab MS Farooq Sahab, Janab Sultan Ahmad Sahab, Janab Nasreen Madam and the Keshwar Madam. And of course, we have to be aware that it is the team effort which lead to success. I feel pride to have many able and the passionate member in our confederation, which gives us and the added conviction and that we can not only meet the expectation, we can even exceed it. We thank Almighty for giving us the opportunity to contribute in the cause of education. Inshallah, we will extend the endure beyond our lives and reach many generations to come. May Allah be with us. We go on. Thank you very much. Thank you, all of you. Thank you very much, Khalil Saab, for your appreciation, and we wish that he has shouldered the responsibility of science fair on me. So inshallah, we'll see that all our students take part in regional science fair this year. May I now request our president, Janab Khalilur Rahman Sahab, to felicitate our guest, Sri Babu Rao Garu, DCP South Zone and East Zone Traffic. To let our students know what are the career opportunities for them in the police department. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस इजलास का जो मेहमान है, मेरे प्यारे बच्चों का वालिदैन को और इजलास को इतना अच्छा माहौल में जो इंतज़ाम करे फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एसोसिएशन मेंबर्स को, सारे लोगों को जो मौजूद है इधर, सबको अस्सलाम वालेकुम। तेलुगु में कहावत है, नमस्कार को वापस नमस्कार करना संस्कार, बोल तो एक रिवाज है, बोल के बोलते। मगर मैं सलाम करे तो सलाम का जवाब सही नहीं आया मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपना कुरान शरीफ इस दुनिया में नाजिल होने का जब शुरुआत हुआ, पहले आयत जो है इकरा, इकरा का मैंने वो अम्मा बोल रहे पढ़ रहे बोल के पढ़ाई। जब इकरा नाजिल हुआ इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ और अपना प्यारे नबी का हदीस को पढ़ने के लिए ये आयत जो है
नाजिल हुआ था। उस जमाने में अपना दुनिया का पढ़ाई नहीं है। अल्लाह ताला भी बहुत सोच समझ के एक काम करे, दुनिया का पढ़ाई को जब नहीं रखा, इसलिए हर इंसान इबादत में रहना है, उसके लिए ये इकरा नाजिल हुआ था। मगर दिन बाय दिन जैसा बढ़ते गया, आबादी बढ़ते गया, हर इंसान पेट के लिए ये वो काम करने लग गया, कुछ नौकरी हासिल करने के लिए, कुछ दूसरा बिजनेस करने के लिए पढ़ाई जरूर था। आहिस्ता 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 क्या हुआ, दुनिया का पढ़ाई भी अपने सामने आके ठहर गया। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम इस दुनिया में जीते 100 साल से बढ़ के नहीं होगा। 100 साल से बढ़ के जिए सो लोग गिनने चुनने में होगा। जब इंसान ये 100 साल जीने के लिए दुनिया का पढ़ाई को ऐसा पढ़ता है भाई, बहुत पाबंदी से पढ़ता है। माँ बाप भी बच्चों को फजर से उठाते पढ़ना लगाते, और फजर से ये बोलता है मेरा बच्चा 10th क्लास फर्स्ट रैंक में आ गए तो मैं सेल फोन दिलाऊंगा, नहीं तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। कई वो लोग रुश्वत देने के लिए देखते। बच्चे भी क्या करते हैं, वो रुश्वत को हासिल करने के लिए बहुत ईमानदार से, बहुत दिल लगा कर पढ़ते। ये 100 साल जीने के लिए ये बात ही है। मगर हजारों साल जीने के लिए, आखिरत के लिए हम क्या कर रहा है। आप सब जने देख रहा होगा, आज का जमाना, नौजवान बच्चे जो है रात भर रोड पे आवारा गिरी करते हुए जो फिर रहा है, फजर का वक्त में आके सो रहा है। इसलिए अपना प्यारे नबी ने कहा, 15वीं सदी का हाल, 15वीं सदी के बाद में हाल जो है वही नहीं बता सकता हूं। हाल बदल रहा है। ये कई को बदल रहा है, माँ बाप का परवरिश सही नहीं रहने से ये हो रहा है। अल्लाह ताला ने माँ का कदमों के नीचे जन्नत को काली पीले नहीं रखा, बहुत सोच समझ के माँ का कदमों के नीचे जन्नत को रखा। मतलब यह है, माँ ही से ही इस दुनिया में टिका हुआ है। थोड़ा माँ ऐसा है, इस दुनिया में जन्नत को देख रहा है। कैसा? बच्चों को सही परवरिश देख के, इबादतगार बनाकर, खिदमतदार बनाकर जो माँ रहता है, वैसी माँ का कदमों के नीचे जन्नत को इस दुनिया में बराबर रहता है। माँ ही जन्नत, घर को जन्नत बना सकता है, जहन्नुम भी बना सकता है। ये सोच समझकर इस दुनिया में हम भी, अरे माँ बाप को खिदमत करो बोलते हम। ये माँ बाप जो है, पहली वर्ड क्या है? माँ है। पहली मर्तबा किसको दी है? माँ है। बाप माँ बोलते हैं, बाप माँ को खिदमत करो बोलते हैं? नहीं बोलते। माँ को पहली मर्तबा दिया है। इधर जितने भी मौजूद है माँ, उनको माँ, मैं सबको दिल की गहराइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, बच्चों को अच्छा परवरिश दो। जितने भी बच्चियां इधर मौजूद है, वो लोग भी आने वाला दिन में माँ बनने वाला है। आप लोग भी ये बातों को दिमाग में, दिल में रखकर आपका जिंदगी गुजारना है। और औरत बच्चियों को और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, हलाल हया वाला ईमान। हया भी एक ईमान है।
हया भी एक ईमान है। औरत बच्चों को खासकर औरत बच्चों के लिए दुश्मन कौन है बोलो? कौन बोलते दुश्मन? आप लोग कोई बोलते भाई? औरत का औरत ही होते बोल रहा नहीं, आप लोग कोई बोलते हैं? जो बच्चियां हैं वो बच्चियों का नजर जो है वो नजरित से वो लोगों का दुश्मन है। इसलिए कह रहा हूं, नीचे नजर जो है शर्म का मिसाल है, खड़ी नजर जो है वो बेशर्म का मिसाल है, ऊंची नजर जो है वो दुआ का मिसाल है। ये तीन नजरों में हम कौन सा नजर से अपना जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, आप लोग ही सोच लो। क्या भाई? आप लोग ही सोच लो। आप लोग अपना मां का कदमों के नीचे जन्नत को हासिल करना है तो बराबर हलल हया वाले ईमान को आप लोग अमल करना है, अमल में लाना है, इस दुनिया के लिए मिसाल बन के रहना है। अभी एक बड़ा बुजुर्ग दिख रहा है सामने, दाढ़ी लगा लेके, उन्होंने सोच रहा खाली औरतों के बारे में बात कर रहे, मर्दों के बारे में नहीं बात कर रहे। भाई आपका बारे में बोलते भाई, अब माँ का बारे में बोले फिर बाबा के बारे में बोलना पड़ता ना मेरे को। मैं वो लोग नजर नहीं कर सकता हूं, इसलिए पूरा घर को संभालने वाला आप है, मेहनत करके लाके खाना पीना देने वाला आप है। अल्लाह ताला आपको भी एक मर्तबा दिया, वो क्या है? जन्नत का बीच का दरवाजा आप है। वो दरवाजा को हिफाजत से रहना है तो आप क्या काम करना? आप ये काम करना है, बच्चों को प्यार देव, मोहब्बत देव, सोना करने वाला खिलाओ, मगर शेर का नजर रखना है। मगर शेर का नजर रखना है, कदम कदम में आप नजर रखना है। काले लाके चावल भरा दिया, तरकारी भरा दिया, किराना भरा दिया, ये बात नहीं। बच्चा बाहर गए तो कैसा रह रहा है, किससे मिल रहा है, किससे दोस्ताना कर रहा है, कौन सा गली में जा रहे, ये पूरा आपका काम है। वो पूरा आपका काम है। इस्लाम का बुनियाद इंसानियत, ये इंसानियत को बच्चों में बचपन से ही सिखाना है। इसलिए बोलते हैं मां का गोदी पहली मदरसा बोलते हैं। बच्चों को बचपन से ही सिखाना है इंसानियत, खिदमत। बच्चों को एक ही बात बोल रहा हूं, आप लोग इस दुनिया में जन्नत को हासिल करना है, अल्लाह का घर में इबादत करो, मां बाप के घर में खिदमत करो। मेरा बयान बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, ताली बहुत बजा रहे आप लोग। सुनने के लिए नहीं, मैं बोले से बात अमल में लाना है, अमल में लाना है। इंसानियत और ईमान और इल्म जो हासिल करता है, इस दुनिया में उन जन्नती बन के रहेगा। आप लोग इस दुनिया का पढ़ाई में आसमान को छीना है तो क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत करके पढ़ना है, ये छे ना? जवाब ये छे ना आप लोगों का? मालूम मेरे को। मगर मैं ये बोल रहा हूं, इस दुनिया का पढ़ाई में आसमान को छीना है तो सबसे पहले आप जमीन में सजदा करना सीखो।
खुद ब खुद आप आसमान को छू सकता है। साथ साथ में ये बोलना चाह रहा हूं, हम जैसा दुनिया का पढ़ाई शुरुआत करने से पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर जैसे पढ़ते हैं, दुनिया का पढ़ाई शुरुआत करने से पहले रब्बी जिदनी इल्मन कसीरा पढ़ो। खुद ब खुद आप आसमान को छू सकता है। सबसे पहले आखिरी में मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अपना पुराना शहर से मैं 1991 में कदम रखा, एसआई बन के छत्तीनाका पुलिस स्टेशन में कदम रखा। 91 से लेकर अभी तक 2018 तक मैं नहीं सुना अपना पुराने शहर से एक बच्चा आईएएस बना, आईपीएस बना, नहीं तो सिविल सर्विस पास हो गया बोल के मैं नहीं सुना। फिर किधर आ रहा, इतने बच्चे मेरिटोरियस अवार्ड जो मिल रहे हैं बच्चे, ऐसा हर साल हो रहा है, मगर कहीं को नहीं बन सक रहे हैं। आसमान को छीना है इस दुनिया का पढ़ाई में, क्या करना, सबसे पहले सजदा करना। मतलब अभी तक कोई आईएएस नहीं बना बोलता मतलब क्या है, अपना सजदा जो है कमजोर हो रहा है, हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, इसलिए आपका पढ़ाई बीच रास्ते में रुक जा रहा है। सजदा को मजबूत रखो। आईपीएस क्या है, ईएएस क्या है, काल एक मिनट में हो सकता है। आप मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसका पहले भी लास्ट ईयर भी मैं बोल के याद है, मैं फिर भी बोल रहा हूं, जो भी बच्चे अपना पुराने शहर से सिविल सर्विस में पास हो गया, मेरे तरफ से 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, फिर आप लोग भी बोल रहे हो, क्या बोलते हो, वो मैसेज आप तक आया है नहीं आया नहीं मालूम मेरे को। कल ये बात मैं जो है मेरा दोस्त का नहीं जिक्र करा, उन्होंने क्या बोला, आपका 1 लाख को मेरे तरफ से और 1 लाख बढ़ा ला बोल के बोला, 2 लाख कर दो बोला ना। मतलब यह है अपना बच्चों के ऊपर हमारा दिल तड़प रहा है, इसलिए है एक आईएएस ऑफिसर कलेक्टर बना, अपना पुराना शहर का बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता उन्होंने। कलेक्टर का हाथ में बहुत पावर्स रखता, फाइनेंशियल पावर्स रहता, जमीन का पावर्स रहता, क्या नहीं कर सकता उन्होंने, बच्चों के लिए बहुत कर सकता है। इसलिए मेरा ख्वाहिश ये है अपना पुराने शहर से बच्चे पढ़कर काबिल बनकर अच्छा पोस्ट में आना है बोल के मैं बहुत ख्वाब देख रहा हूं। मैं समझता हूं आज जितने बच्चा बैठा हुआ है, थोड़ा मेरे को दिख रहा है इसमें, थोड़ा सारे खूबियां जितने भी बोला यार दिख रहा है मेरे को। इंशाल्लाह आने वाला दिन में आप लोग में से कोई ना कोई कलेक्टर बनेगा, ईपीएस बनेगा, अपना पुराना शहर बच्चों के लिए एक मिसाल बन के रहेगा। साथ साथ में मैं अभी 4 साल 8 महीने में एडिशनल डीसीपी साउथ जोन में काम कर रहा था। साउथ जोन से बहुत मोहब्बत खुलूस है मेरे को, इसलिए साउथ जोन में मिलता है प्यार मोहब्बत मिलता पुलिस वालों के लिए खासकर। अब मैं ट्रैफिक डीसीपी बना, तारनाका से लेके टोली तक मेरी एरिया है, बोल तो मलकपेटा, चादरघाट, सारे अपना पुराना शहर, आसिफ नगर, गोशा महल, तोली चौकी तक मेरा एरिया है। मेरे को मौका मिला, कई प्रोग्राम कर रहा है ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में। आजकल बच्चे बहुत शौकीला हो गया, सेल फोन से और मोटरसाइकिल से खासकर।
सेल फोन बोलता कि मेरे को एक वाकया याद आ गया। मैं एक बार नाइट ड्यूटी कर रहा था, बीबी का चश्मा रोड में, फुटपाथ में चार बच्चे बैठकर सेल फोन में बहुत मशरूफ है वो लोग। मैं क्या करा, ड्राइवर को गाड़ी वो लोग सामने रुको बोला, गाड़ी रोक दिया। वो लोग सर उठा के देख रहे नहीं, कौन सा गाड़ी है, कोई दुश्मन आया क्या, ना तो पुलिस आया क्या, असल आया कौन, सिर्फ फोन में बिजी है। ड्राइवर बोला थोड़ा सायरन बजाओ, सायरन बजाया। मैं समझा सायरन बजाया तो उठ के भाग जाता हूँगा। मैं सारा ऐसा आराम से उठा के देखा, देख के अपना काम आप कर लो, मेरे काम मैं कर ले रहा हूँ बोल के हाँ, मेरा काम मैं कर लेता हूँ बोल के ऐसा अल्लू उठ के ऐसे जा रहा हूँ। हाँ, पुलिस बोलती इज्जत नहीं है बोल नहीं है, मगर इसमें कितने उन्होंने मसरूफ हो गया, उन्होंने इसमें इससे सेलफोन से कितने लगाव हो गया। रात में 12 बजे रात में फुटपाथ में बैठकर क्या देख रहा हूंगा, फिर माँ बाप क्या कर रहा है। मेरा माँ बाप से जितने भी आप मौजूद है, मैं गुजारिश कर रहा हूं, बच्चों के ऊपर नजर रखो। जमाना अच्छा नहीं है, जमाना अच्छा नहीं है, जमाना बहुत खराब है। अपना बच्चों को पर्दा में रख के पालना है। अभी मर्द बच्चों को भी आजकल बुर्का पहना के पालने का वक्त आ गया। दुनिया बहुत खराब है, याद रखो। साथ साथ में मैं आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, ट्रैफिक के बारे में 2 बात करके मैं खत्म करूंगा, आप लोग बोर लग रहा होगा। हम इस दुनिया में आने के लिए मां का पेट में 9 महीने इंतजार करते हैं, करते नहीं करते, जल्दी आते हैं। और पैदा होने के बाद एक स्कूल में एडमिशन लेना है, एक स्कूल में एडमिशन लेना है। हम कितने साल इंतजार करते? मिनिमम 3 साल, मिनिमम। थोड़ा गरीब जो है 5 साल भी लगता है, उतने साल इंतजार करते हम। क्या भाई, मेरे बड़ा भाई, आप किस टारगेट कर रहा हूं मैं? वैसा ही माइनर से लेके मेजर बनने के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ता? 18 साल। इंतजार करते नहीं करते? जल्दी मेजर होते क्या? नहीं होते। वैसा ही शादी करना है, इंतजार करना पड़ता अपना को, है ना भाई? नौकरी हासिल करना है, मिनिमम 21 ईयर्स इंतजार करना पड़ता। कुछ अच्छा बिजनेस वाला बनना है तो भी अकला आना है तो 18 साल लगता ना भाई? लगता नहीं लगता? जब तक इंतजार करना पड़ता। तू करोड़पति बनो, अरबपति बनो, कलेक्टर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, आप इंतजार करना ही पड़ता। ये बनने के लिए आप पहले जिंदा रहना, पहले जिंदा रहना है। हर इंसान रोड पे नहीं आए तो दिन नहीं गुजरता, कुछ ना कुछ काम के लिए आता, कारोबार करने के लिए आता, नहीं तो अपना पोट्टे जरा रात भर फिर रहे हैं, फिरने के लिए तो आते, दोषा करने के लिए, हाँ, नहीं तो चबूतरा विष्णु में पकड़ने कटने के लिए आते। वैसा हर इंसान रोड पे आना बगैर कुछ काम नहीं होता। इतने इंतजार करते करते हम महीनों सालों इंतजार करते। 2 मिनट जो है ट्रैफिक में रेड सिग्नल गिरे तो नहीं रोक सकते क्या? इंतजार नहीं कर सकते क्या? मैं सवाल कर रहा हूं। आ गया ट्रैफिक में, आ गया ना मैं लाइन पे? ये बात समझे नहीं समझे? जिसको नहीं समझा हाथ उठाओ, जो नहीं समझा हाथ उठाओ। सब जने समझ गया मगर मुंह नहीं खुल रहा है। हा?
हर चीज को इंतजार कर रहे हैं हम इस दुनिया में अपना अपना ख्वाहिश को हासिल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं हम। वो ख्वाहिश को हासिल करना बोल तो पहले आपको जिंदा रहना है, फिर जिंदा रहने के लिए 2 मिनट आप सब्र नहीं कर सकते क्या? ट्रैफिक सिग्नल के लिए नौजवान बच्चों को बोल रहा हूं मैं, याद रखो ट्रैफिक रूल्स को आप अमल करो। इसलिए आपके ऊपर आपका माँ बाप को, आप भाई बहनों को वो लोग काब अलग रहता, वो काब को हासिल करना है तो पहले आप जिंदा रहना है। आप जिंदा रहना है तो रोड पे आए तो ट्रैफिक सिग्नल्स को आप रेस्पेक्ट करना है, अमल करना है। हाँ, आजकल अपना माओ ने क्या करते, माइनर बच्चों को जाके दूध ला लो, लैंड 2 कोत्मीर कट्टा लाओ बोल के गाड़ी देख के भी जाते, सुनते रहते भाई, गाड़ी देख के भी जाते माइनर बच्चों को। माइनर बच्चों को अक्ल कम रहता है, ट्रैफिक सेंस कम रहता है। सामने जो गाड़ी आ रहा है उन्होंने स्पीड पे आ रहा है, कौन सा स्पीड पे आ रहा है उन्होंने सही समझते नहीं, जल्दी हाइबत हो जाता है ट्रैफिक में। माइनर बच्चे वो लोगों को गाड़ी मत दो, वो लोगों को गाड़ी मत दो। इसलिए मत दो बोल रहा हूं मैं, इन्हें खुद मर सकता या नहीं तो सामने वालों को, इसलिए नको दो। दूसरी बात यह है, कुछ टक्कर हो गया, हाथ पैर गिर गया, थुड़ गया, मारा लगे, उसके लिए अपना को इंश्योरेंस मिलता है। गाड़ी के ऊपर जो इंश्योरेंस रहता आपका मेडिकल खर्च इंश्योरेंस वाला देता है। मगर माइनर बच्चे एक्सीडेंट करा समझो, गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस रहे तो भी वो कंपनी वाला इंश्योरेंस नहीं देता। इसलिए कानून ये बोल रहा है माइनर बच्चों को गाड़ी मत दो, कानून के दायरे में चले तो इंश्योरेंस मिलता अपना को, नहीं तो पैसा कौन देना पड़ता? इंश्योरेंस वाले कम पैसा नहीं देते, वो खर्च कौन उठाना पड़ता? जो माँ बाप अपने प्यार से लाड से गाड़ी दिए ना, वो गाड़ी दिए लोग उठाना पड़ता। इसलिए यहां जितने भी माँ बाप मौजूद है, मैं सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, माइनर बच्चों को गाड़ी मत दो। मैं बहुत बार देखते रहता हूं काला पत्थर रोड पे, मैं रमेश जाते रहता हूं, थोड़ा माँ क्या करते मालूम, माइनर बच्चों को उन गाड़ी चलाते पीछे बैठते। वैसे मत करो, पुराना शहर का नाम रोशन होना है। ये रोशन होने के लिए हम सब जनों हिस्सा लेना है। ट्रैफिक रूल्स का अमल करो, बच्चों को सिखाओ, एक मिसाल बनकर रहो। मैं जो 1 लाख बोला, मैं वो 1 लाख हासिल करने के लिए मेहनत करो, इबादत करो, खिदमत करो, आपका ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। मैं आखिरी में, मेरा टाइम हो गया, बुला रहे मेरे को, आखिरी में सबको मैं एडवांस रमजान मुबारक बोल रहा हूँ। शुक्रिया, खुदाफिज, थैंक यू। Started a small school years back and converted it into a chain of schools. 100 students to the ISRO and 10 students to the NASA. Give me a big applause. His services towards the education is most remarkable. Komi, there are around 21 school toppers over here. So the students are requested to come quickly and collect your awards. Mohana Begum, Neo Holy Fatima High School, Sumaya Shafaq Ahad High School, Peep Islamic Creative High School, Abdul Bari Neo Rosary High School, Nazira Nasreen Crescent High School Diwandeodi, Priyanka Sharma Mars High School, Sayyida Alia Masarat Samia High School, Muhammad Zamir Ahmad Al Ehsan High School, Samreen Begum Crescent High School Kalapathar, Siddiqa Fatima Ali Ahmad
St. Anne's High School, Amina Begum, Princess Dureshwar High School, Sadia Fatima, Sheikh Nisar, Ashraful Madaris High School, Yasmin Begum, Ashraful Madaris High School. So education is the passport to the future for tomorrow, belongs to those who prepare for it. So a big round of applause to all the students, our meritorious toppers. You are requested to sit down here for a photograph. Please don't leave the dais after taking your awards. All the toppers had to wait here for the photographs, please. इन लोगों के सर्टिफिकेट्स दे देंगे, दे दो। ये तो दे दो। Yes, yes. कहीं the school toppers to stay here for a group photo, and the parents, please do come fast. School toppers. अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके सामने श्री बाबूराव साहब ने, ठीक है, एक तो रास्ता ये है कि हम सिजदा करके अल्लाह के करीब पहुंचिए तो अल्लाह ताला हर रास्ते को आसान करता है। और दूसरा रास्ता ये होता है उसके अलावा कि हमारे बच्चों को एक महदूद जगह में एजुकेशन मिल रहा है, स्कूल, स्कूल से घर और अपने महल्ले के अंदर। उसके बाद हमारे बच्चे कभी बाहर नहीं जाते। तो मेरा ये तजुर्बा है और मेरा ये बिलीव है कि अगर बच्चों को एक्सपोजर देते हैं, दूसरी जगह ले जाकर बताते हैं कोई चीज़ को एजुकेशन ताल्लुक से, तो बच्चों में सीखने की दिलचस्पी बढ़ती है। बच्चों में जो है ना अपना एक्सपोजर, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी एक नीयत से मैंने लास्ट 2 साल से अपने स्कूल के बच्चों को बेंगलुरु, दिल्ली वगैरह लेके जाता था स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम में। वहाँ देखा कि बच्चों में पढ़ने का और सीखने का जो दिलचस्पी थी वो बढ़ गई है, और जो बच्चे जाके आए हैं वो बच्चे दूसरे बच्चों के लिए इंस्पायर बने हैं। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों हमारे बच्चे नासा न जाए। आप लोग देखते हैं बाहर बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूल के बच्चे नासा जा रहे हैं। जिसके पास पैसा है उनके लिए नासा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके माँ बाप के अकाउंट में 5-6 लाख पड़े होते हैं और उन्होंने आईटी पे करते हैं, तो उनके लिए वीज़ा आसानी से मिलता है और नासा जाने के लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। लेकिन जो हम बजट प्राइवेट स्कूल जो बोलते हैं, जो जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी फ़ीस 1000 के आसपास में मंथली बनते हैं हम लोग, ऐसे स्कूल के बच्चों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए नासा अमेरिका जाना एक ख्वाब रह जाता है। ये मेरा ड्रीम है कि हमारे हैदराबाद शहर के जितने भी स्कूल्स हैं उन तमाम स्कूल के बच्चे भी नासा जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक कैट अकादमी का क़याम अमल में आया। इसके ज़रिए हम लोग हैदराबाद पुराने शहर के 69 स्कूल से करीब 4235 बच्चे एग्ज़ाम लिखे। उस एग्ज़ाम में फ़र्स्ट राउंड में हम लोग 800 बच्चों को सेलेक्ट किया था सेकंड राउंड के लिए। फिर सेकंड राउंड से हम 100 बच्चों को सेलेक्ट किया, जिसमें 10 टॉप जो स्टूडेंट है वो नासा जाएंगे इंशाल्लाह, और रिमेनिंग जो 90 स्टूडेंट्स थे वो इसरो और बेंगलोर म्यूजियम जाकर आए हैं। हमें यहाँ से बेंगलोर इसरो जाना भी एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है, इतना आसान नहीं है इसरो जाना। अब इंशाल्लाह दुआ कीजिए, हमारा वीज़ा प्रोसेस बहुत करीब में है। हम लोग इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक वीज़ा मिल जाएगा,
तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह ईद के बाद हम नासात जाएंगे। हमारे बच्चों के पेरेंट्स के पास लाखों रुपए तो बैंक में होते नहीं, पहले बैंक अकाउंट नहीं है, अगर है भी है अकाउंट तो उनके पास लाखों रुपए नहीं होते हैं। वीज़ा के लिए पहली शर्त होती है कि माँ बाप के पास अकाउंट में पैसा हो और वो माँ बाप IT पे करे लास्ट 3 साल का, तभी वीज़ा इजी मिलता है। लेकिन हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गरीब घरों से हैं, जिसके पास बैंक में 10-20 हज़ार से बढ़ के नहीं रहते हैं और उनके पास IT का तो नाम ही नहीं है। फिर भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये स्पेशल पैकेज में इंशाल्लाह ये 10 बच्चों को वीज़ा इंशाल्लाह 23 से 24 तारीख के दिन इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो हम ईद के बाद नासात जाएंगे, जहाँ पर ये हमारा जो ख्वाब था कि बजट प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी नासात जाएंगे, इंशाल्लाह जाके रहेंगे। आप लोग की दुआ की गुजारिश है, दुआ कीजिए हमारे बच्चे इस साल 10 बच्चे जाएंगे। तो अगले साल फिर हम लोग 2 प्रोग्राम लेके आए हैं। एक है जैसे ये साल हुआ है, तमाम स्कूलों में एग्ज़ाम होगा, जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे 10 बच्चे नासात जाएंगे और 50 स्टूडेंट्स बेंगलोर इसरो जाएंगे और रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स जो है ना साइंस म्यूजियम जाकर आएंगे। साथ ही साथ और एक मुस्लिम तलबा के लिए, मुस्लिम बॉयज़ के लिए 6 to 10th बच्चों के लिए एक अलग से दीनी एग्ज़ाम होगा, जिसमें से टॉप 10 स्टूडेंट्स को उम्रा का पैकेज दिया जाएगा। इंशाल्लाह अगले साल करेंगे। अब दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़। So much Anwar Sahab, and I wish all the students. Time for quiz. I would request Mohsina madam and Nadira madam to take care of our quiz students. Now the question goes, and I request only school students to answer. We don't want intermediate students or degree students to answer these questions. Now the question, mathematics question, what is the 1/4 of 1000? 1/4 of 1000. I'm Sayyida Sania from New Model High School, 250. Right answer. So 50% of 5/8. Which is the larger 50% of 5? You have to give me the total. Social toppers. Which ocean surrounds the Maldives? Answer. Introduce yourself. Eaten during Wimbledon tennis matches. Backside. For bottle, bell and bird. From New Model High School, B. Which word? I'm talking about the word, not letter. Which word can be placed before bottle, bell and bird? Bird. Sorry, bell. I said before bottle, bell and bird. Finish? Yes. The quiz is finished. Now we are having that the distribution of the toppers for the mathematics or science? Science toppers. Nath is there. You are going for Nath. Dedi. After science toppers, we'll have. Having the toppers program. Zeba Tahur, Nosheen, Samira, and other students. Please come on the dais. Once had a teacher, the teacher of teacher. He changed the world for the better and made us better creature. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Muallim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Muallim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, Abul Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Khairu Khalqillahi Muhammad,
Ya Mustafa ya Imam al-Mursalina, Ya Mustafa ya Shafi al-Alamina, Ya Mustafa Imam al-Mursalina, Ya Mustafa ya Shafi al-Alamina. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While the would love, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you, truly you are our teacher. Muallim, he was Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Ya Rasuli, Ya Muhammad, Ya Bashiri, Ya Muhammad, Ya Nadiri, Ya Muhammad, Ishq Qalbi, Ya Muhammad, Nuru Aini, Ya Muhammad. He taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry. Help the wafer and the orphan child, and do not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Abul Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Khairu Khalqillahi Muhammad. Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalina, Ya Mustafa, Ya Shafi al-Alamina, Ya Mustafa, Imam al-Mursalina, Ya Mustafa, Ya Shafi al-Alamina, Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalin. Muallim. The felicitation of the mathematics topper. May I request Mr. Mushtaq Hussain Saab to come fast from Prince Dureshwar Girls High School. Bushra Shehbaz from Brilliant High School. Brilliant machine, sorry. Ahmed. Next. Next, Rabah Khan from. Next, Sheikh Imran Firdaus from Ahad High School. होली फातिमा कहूंगा देखो जरा ले लो सर D. Danshu School. Sayyid Sayyida Sania Fatima. ये आईसीएससी का निकाल लो सर ये कुछ सब दे दीजिए वहाँ चेंज दिए सुल्तान साहब ये चलिए राइट सर सानिया सानिया इद्रिस भाई के सामने and Supraja Abdul Mansoor from which school? Fauzia Jabin from Safdaria Grammar High School. Shahzeen Begum, Reliance Grammar High School. जरा आहिस्ता थोड़ा सा बोलिए आहिस्ता बोलिए मैडम Brilliant Mission High School. High School.
From Ahad High School, Tapa Chabutra. Juveria High School. From New Rosary High School. Shankar Vandal. Plain certificate. Zeban. Plain certificate. हाँ. Plain certificate. Science के दो plain दो. Next. Afreen Parveen from New Model High School. Next. ये है. प्रियंका शर्मा फ्रॉम मार्स हाई स्कूल. आपका बच्चे का था ना. बीबी. नेक्स्ट अर्शिया नाज फ्रॉम सामिया हाई स्कूल. मोहम्मद अब्दुल. सलामा हाई स्कूल. प्लीज बी रेडी. नेक्स्ट सुल्तान सर. नेक्स्ट Neha Begum of Princess Dureshwar Girls High School, and again Al Hassa from Safdaria Girls High School. जल्दी आइए, अगर है बच्चे तो जल्दी आइए. Tanveer High School. मीरा जहां ब्रिलियंट मिशन अब्दुल हाई सुलेमान स्कूल. आपका है. समरीन बानो. अर्शिया खातून ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल. बेट आपका नाम. अफजल. अर्शिया खातून ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल. मोहम्मद अहमद सेंट सुलेमान हाई स्कूल. सरफराज सेंट सुलेमान हाई स्कूल. सलाम हाई स्कूल के क्या नाम. उम्मे आयमन कादर फ्रॉम आहद हाई स्कूल. सैयदा अस्मा उन्नीस. बी शिवमूर्ति फ्रॉम मुमताज हाई. नेक्स्ट सर. दीवान देवड़ी. मैडम आइए. मोहम्मद. मोहम्मदी रूही अंजुम फ्रॉम न्यू मॉडल हाई स्कूल. रूही अंजुम का. सोनाली. And Sayyida Khatija Fatima from next Sadia Fatima. Muhammad Akhil from Crescent High School. School. National anthem. Words on this occasion. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप लोग हर स्कूल्स में हर सब्जेक्ट्स के टॉपर्स को अवार्ड यहाँ पर मिला है. तालिबात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों को ये बेस्ट सब्जेक्ट्स का अवार्ड और मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल और इंग्लिश और साथ ही साथ स्कूल्स के टॉपर्स का अवार्ड मिला है. मैं एक 99 टीवी चैनल के जानिब से और गैलेक्सी जूनियर एंड वोकेशनल कॉलेज की जानिब से आप लोगों को इंटरमीडिएट में ये जो अवार्ड लेके आएंगे, ये जो सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट लेके गैलेक्सी कॉलेज को अगर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिलेगा. ये जितने भी टॉपर्स यहाँ पर है सब्जेक्ट्स के, वो सर्टिफिकेट लेके आके आप गैलेक्सी जूनियर एंड वोकेशनल कॉलेज में अगर लेके आएंगे तो आप लोगों को 50% एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एचईसी, एमईसी और वोकेशनल में कई और लॉट ऑफ कोर्सेस हैं. लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये कोर्स इक्वल टू इंटरमीडिएट है. आप ये जो कौमी का जो सर्टिफिकेट मिला है वो अपने पेरेंट्स के साथ अगर गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शालीबंडे पे अगर आप ले लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 50% आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा.
और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरीके से यहाँ पर 10th में सब्जेक्ट्स पे टॉपर्स लेके आए, इंशाअल्लाह ताला इंटरमीडिएट पे भी आप स्टेट लेवल्स पे टॉपर्स लेके आ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह इसी तरीके से उम्मत मुसलमान को फतेह, नुसरत और कामयाबी अता फरमाए और इन लोगों को दीन दोगुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। या अल्लाह इनके जहनों को खोल दे। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, जिस तरीके से दुनिया की तालीम के लिए हमने इस मोर्चे पे हम लोग अपना लोहा मनवाया, इसी तरीके से आखिरत के लिए भी हम लोग कुरान का रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। आप लोगों को पेशगी में रमज़ान मुबारक कहता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को इस रमज़ान में अपनी रहमत, अपनी बरकत और अपनी फजीलत से मालामाल करें और साथ ही साथ आप लोगों के जहनों को खोले, आपके सीनों को इल्म से आरास्ता करे और कुरान से और आप लोग जुड़ जाएं। अल्लाह ताला की रमज़ान में खूब ज़्यादा इबादत करें, खूब ज़्यादा जिस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर्स करे, बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आए, तो ये भी रमज़ान मुबारक ऐसा है, वहाँ पे खूब अल्लाह ताला की इबादत करना है, तहज्जुद पढ़ना है, तरावीह करना है, रोज़े रखना है और इस क्या बताना इबादतें अल्लाह ताला की तिलावत कुरान करना है और उसका ट्रांसलेशन के साथ अगर हम कुरान पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी हमारी सरखुरूब होगी और आखिरत में भी हमारे को फतेह नुसरत होगी। मैं कौमी फेडरेशन के तमाम मेरे साथियों का मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, जो उनके स्कूल्स में जो इतने बच्चे टॉपर्स आए, एक कम्युनिटी को इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं स्कूल्स के जो करस्पॉन्डेंट्स हैं उन लोगों को भी मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं और स्टूडेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूं। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज। I request all the participants of Math, Science and Social winner to stay back for group photo. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ को लेकर हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया और 5 सालों से मुसलसल हमने कई होनहार तलबा व तालिबात को उनकी कामयाबी पर उनकी हिम्मत अफजाई की। आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर मीडिया का और जनाब के बाबूराव साहब डीसीपी और मेरे तमाम साथी जो आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शाना बशाना मेरे साथ चले, और तमाम तुलबा व औलिया तुलबा को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनके बच्चों ने कामयाबी हासिल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। वंस अगेन आई थैंक्स ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।